We are doing the chapter of ionic equilibria, and the next topic of ionic equilibria is buffer solutions. So buffer solutions are solutions. We need to define it as well. It is a solution that resists a change in its pH when a small amount of acid or alkali is added to it. This is how we define it. It is a solution which resists a change in its pH when a small amount of acid or alkali is added to it. So इसका मतलब ये हुआ कि if you add small amount of acid or a small amount of alkali to this solution, its pH will remain the same or it will remain constant. So how will this affect, how it will work, how will this such solutions maintain their pH? We need to learn about it. और देखना ये है कि वो अपनी pH कैसे मेंटेन कर सकेंगी और इनको बनाना कैसे है. बफर सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. आपके ब्लड में भी एक बफर होता है, एंड यू नो दैट इफ द pH of the blood will change, it will cause the denaturation of the proteins present in the blood, such as fibrinogen and prothrombin and other complex proteins which helps in blood clotting, etc. So if the pH of the blood will change, these proteins will denature and the clotting of the blood will not be proper or may not occur. Similarly, we need buffer solutions in our routine life as well to maintain the pH of the medium so that the reactants or the products do not get rotten or they do not get wasted. So do not get denatured as well. So we need to maintain the pH because proteins are very sensitive to pH change, just like the temperature change. And if the pH changes, they are denatured. The structure is distorted and they no longer been able to carry out their function. So buffer solutions are very important in that aspect. So we will also study how our blood buffer works and what is the chemical composition of that buffer. And we will also learn about creating buffer in laboratories and commercially as well for carrying out different functions such as maintaining pH. So buffer, one of the buffer can be made by a weak acid and its strong salt. So such kind of buffers are called acidic buffers. बफर को बनाने के लिए वी नीड अ वीक एसिड, एंड वीक एसिड्स आर यूजुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ अदर एसिड विच आर नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड बट दे आर वीक एसिड. जैसे कार्बोनिक एसिड इज आल्सो वीक एसिड. तो अगर आप वीक एसिड लेंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे और उस एसिड के जो अगर आप सोल्यूशन बनाएंगे तो जारी बात है वो पार्शियली आयनाइज होगा. इट विल बी पार्शियली आयनाइज्ड. तो उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और उसमें से उसका नेगेटिव आयन निकलेगा. अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, द नेगेटिव आयन ऑफ द एसिड को हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं. तो हम यूं भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट बफर कैन बी मेड by mixing a solution of a weak acid and a solution of its conjugate base. तो वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो कहाँ से आएगी? ज़ाहिर बात है हमें उसका कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा जिसमें वो जो कि पानी में फुली सॉल्युबल हो. तो वी नीड अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ दैट वीक एसिड. तो वीक एसिड में तो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक वीक एसिड सच एज एथेनोइक एसिड एंड इट्स पीएच इज नियरली 4, तो ये आयनाइज होकर बना रहा है टू हाइड्रोजन आयन एंड एथेनोएट आयन. As we say it's a weak acid and its pH is quite large, it means that it is partially ionized. And when it is partially ionized, so mostly it remains in the form of unionized acid CH3COH. तो अगर आप 1 मोल पर डीएम क्यूब लोगे तो ये 0.97 और 0.95 मोल पर डीएम क्यूब तो एथेनोइक एसिड ही होगा. And very small negligible ions will be produced in concentration. तो आपके पास इस मिक्सचर के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, बट द इक्विलिब्रियम इज वेल टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड
and you have very high concentration of ethanoic acid and a very small concentration of its base or ethanoate ion. अब अगर आप इस सोल्यूशन के अंदर एथानोएट आयंस की जो सोल्यूशन है वो ले आए यूजिंग सोडियम एथानोएट और पोटाशियम एथानोएट और मैग्नीशियम एथानोएट, उसको पानी में डिजोल्व करें और वो मिक्स कर दें आप एथानोइक एसिड की सोल्यूशन में, तो आपका बफर रेडी हो जाएगा. अब इस बफर में हाउ दिस बफर विल प्ले इट्स रोल, वो अब हमने देखना है कि जब आपने इसके अंदर सोडियम एथानोएट डाला तो उसमें बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथानोएट आयन आपने खुद डाल दी. अब देखना ये है कि एक्सप्लेन करना है कि हाउ दिस विल अफेक्ट और हाउ इट विल कंट्रोल इट्स पीएच, हाउ विल दिस मिक्सचर कैन कंट्रोल इट्स पीएच. तो देखिए, आई विल राइट टू इक्वेशंस. if I add acid, if I add acid to a mixture of ethanoic acid and ethanoate ion, बेसिकली मिक्सचर जो आपका इस वक्त काम करने वाला है वो है एथानोइक एसिड और एथानोएट आयन. तो ये आपका बफर है इस वक्त CH3COOH स्लैश CH3COO नेगेटिव. ये this is these two species will be doing their buffer action. तो ये आपका बफर का काम करेगा. अब देखना ये है कि ये बफर का काम कैसे करेगा. उसमें हमें टू इक्वेशंस जो हैं वो लिखनी होती हैं. एक इक्वेशन लिखनी होती है एसिड के अंदर, जब एसिड ऐड करते हैं तो जब आप एसिड यानी कि हाइड्रोजन आयंस ऐड करते हैं तो हमने कहा कि ये अपनी पीएच मेंटेन करता है. So how does it maintain its pH? By neutralizing the hydrogen ions we will add externally. यानी कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड जो हम इस सोल्यूशन में डालेंगे तो वो उस हाइड्रोजन आयन, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दैट कॉजेज द एसिडिटी ऑफ द सोल्यूशन, वो हम अगर हाइड्रोजन आयंस को न्यूट्रलाइज कर दें तो आपकी पीएच चेंज नहीं होगी. तो ये जो मिक्सचर है देखते हैं कि अब ये इसमें ऐसा क्या रोल, कैसे ही अपना रोल प्ले करेगा कि जो हाइड्रोजन आयंस आपने सोल्यूशन में डाले हैं उससे पीएच डिक्रीज होनी चाहिए थी, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ाने की कोशिश की है. सो द रिवर्सिबल रिएक्शन will go on the backward side, and the reaction that will occur is CH3CO negative will react with the hydrogen ions that you have added externally, to form CH3COOH. तो इस तरह करने से आपका जो एसिड था हाइड्रोजन आयन ये न्यूट्रलाइज हो गया है. H प्लस आयन जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है टू अनन्यूट्रलाइज हो गया है टू अनआयोनाइज्ड एसिड, न्यूट्रलाइज टू अनआयोनाइज्ड एसिड. और अनआयोनाइज्ड एसिड आपकी पीएच को कुछ नहीं कहता. अनआयोनाइज्ड एसिड डज नॉट अफेक्ट योर पीएच, द सॉल्यूशन ऑफ योर पीएच. तो इस तरह करने से आपने जब एथानोइक एसिड एंड इट्स एथानोएट आयंस, जब इसमें आपने हाइड्रोजन आयंस डाले तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड पे चला गया, और बैकवर्ड जाने से रिएक्शन जो है वो अब जो है वो इस तरह से होना शुरू हो गया कि CH3CO negative will react with H positive to form CH3COH. CH3COH does not affect the pH. pH is affected by hydrogen ion concentration. pH की definition क्या है? It is the negative log of the hydrogen ion concentration. तो जब हाइड्रोजन आयन आपने डाले, when you have added hydrogen ion, you are thinking that these hydrogen ions will increase in concentration and the pH will decrease, because आप negative log लेते हो तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है. तो ये जो है ये इसकी pH जो है वो 4 से डिक्रीज होके मे बी 3 या 2 पे जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसकी pH 4 ही रही. Its pH remains 4. Why? Because the hydrogen ions you have added has reacted with the conjugate base of the acid
that has been added by you by using a salt of the acid. तो उसमें आपने जब H प्लस डाला तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड चला गया और CH3CO नेगेटिव ने उन H प्लस आइंस को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया एंड कन्वर्टेड देम टू CH3COH। तो ये एक इक्वेशन होगी जब आपने एसिड डाला था। अब हम एक और इक्वेशन लिखेंगे जब इसके अंदर एल्कली डालेंगे। तो एल्कली जब डालते हैं, एल्कली जब आप ऐड करते हो तो बेसिकली आप कौन से आयंस ऐड कर रहे होते हैं? यू आर एडिंग हाइड्रोक्साइड आयंस। तो उस केस में चूंकि आपके इस मिक्सचर में बहुत सा अनआयोनाइज्ड एसिड पड़ा हुआ है, you have seen that most of the acid CH3COH remains unionized। इस हाइड्रोक्साइड जब आप डालोगे तो CH3COH will react with hydroxide ions will react with hydroxide ions to form CH3COO negative ions plus water। तो अब देखिए कि ये इक्वेशन मैं इसको लाइन में लेकर आ रहा हूँ। तो ये इक्वेशन हमें क्या सजेस्ट कर रही है कि आपने हाइड्रोक्साइड आयन डाल के तो ये सोचा था कि पीएच बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन डालने से जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं और आपको पता है वो रिएक्शन जो है वो इस तरह से होता है कि H प्लस आयन्स टू H प्लस reacts with hydroxide ions to form water। तो इस रिएक्शन की वजह से आपने देखा कि पीएच जो है वो मेंटेन हो गई। तो बेसिकली जो एसिड है उसने हाइड्रोजन आयन देना शुरू कर दिए और उन हाइड्रोजन आयंस ने हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज किया टू वाटर। इस तरह करने से आपके जो पीएच है वो मेंटेन रहेगी। व्हेन यू हैव एडेड हाइड्रोक्साइड आयन, इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो पीएच है उसको इंक्रीज होना चाहिए, उसको पीएच को इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि आप उसमें एल्कली डाल रहे हैं। तो एल्कली, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कली डालने से पीएच चेंज नहीं होती, बिकॉज दिस मिक्सचर हैज़ द कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोक्साइड आयंस एज वेल। उस इस मिक्सचर ने हाइड्रोक्साइड आयंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और एब्जॉर्ब करने से आपकी जो सोल्यूशन है उसमें पीएच मेंटेन हो गई है। तो अगर हम if you are using the equation as CH3CO negative COH reversible arrow to form H plus CH3CO negative, तो बेसिकली जब आप एल्कली डालते हो तो एल्कली डालने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, एल्कली डालने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, जबकि हाइड्रोजन आयंस ऐड करने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो एल्कली में जब आप एल्कली डालते हो तो बेसिकली एसिड आयनाइज होता है और वो H प्लस साइन बनाता है। H प्लस साइन OH नेगेटिव से मिलके वाटर बनाते हैं और इस तरह आपकी पीएच मेंटेन होती है। इन द अदर वे अराउंड जब आप H प्लस साइन डालते हो तो H प्लस साइंस रिएक्ट विद द CH3CO नेगेटिव आयंस एंड दे फॉर्म अनआयोनाइज्ड एसिड एंड इन आइदर वे योर पीएच इज मेंटेन्ड। ठीक है जी। OH नेगेटिव डाल के आपने पीएच बढ़ाने की कोशिश की, एसिड ने H प्लस साइंस प्रोड्यूस किए एंड न्यूट्रलाइज कर दिया टू फॉर्म वाटर। इस तरह जब आपने H प्लस साइंस डाले तो आपने पीएच को कम करने की कोशिश की, डिक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन पीएच डिक्रीज नहीं हुई, क्योंकि जो H प्लस साइंस हैं उन्होंने CH3CO नेगेटिव यानी कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड से रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर दिया है टू अनआयोनाइज्ड एसिड। So defining buffer solution, then giving an example of buffer solution जैसे कि एथेनोइक एसिड एंड सोडियम एथेनोएट मिक्सचर, या अगर सोडियम एथेनोएट नहीं भी लिखते तो एथेनोएट आयंस सॉल्यूशन। तो एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन एंड एथेनोएट आयंस और कॉन्जुगेट बेस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड, ये आपको चाहिए था। वीक एसिड और उसकी कॉन्जुगेट बेस, इस मिक्सचर के अंदर जब आप H प्लस डालोगे तो भी पीएच मेंटेन रहेगी, अगर आप एल्कली हाइड्रोक्साइड आयन डालोगे तो भी पीएच मेंटेन रहेगी। तो यू हैव टू राइट दीज टू रिएक्शंस जो मैंने अभी आपको बताए हैं एंड यू विल गेट 4 मार्क्स। तो ये इक्वेशंस लिखने से बफर एक्शन एक्सप्लेन होता है। बफर एक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय राइटिंग दीज इक्वेशंस। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है इफ द डेफिनेशन इज नॉट बीइंग आस्क्ड।
ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम बफर? Okay, let's take more examples. This was ethanoic acid and its conjugate base ethanoate ions buffer action. Let's take some more example. This was an example of a acidic buffer. तो हमने वो equations भी लिख ली हैं और उसका वो जो है वो भी लिख लिया. Okay, let's take an example of another buffer in your blood. पहले हम वो देख लें blood buffer. तो यूजेस ऑफ बफर में देखिए एक एग्जांपल दी हुई है कि आप जो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है ह्यूमन के अंदर, ये ब्लड बफर का काम करता है. अच्छा, अब बफर में एक एग्जांपल मैं खुद आपको दे रहा हूँ. व्हाट इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ व्हाट इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ H2PO4 -1 स्लैश HPO4 -2. इसे कहते हैं डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट का बफर. हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये भी एक वीक एसिड है और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट दिस आल्सो मेक्स अप अ बफर सॉल्यूशन. ये भी बफर है. उसके अलावा आपके ब्लड बफर में जो है वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 carbonic acid and its HCO3 - 1 charge ions, ये भी एक बफर है. बट दिस इज ब्लड बफर. ये जो है ये ब्लड बफर कहलाता है. दिस इज योर ब्लड बफर. ब्लड बफर जो है वो इन दोनों आइंस का बना हुआ होता है. तो अगर वो आपसे कहे कि राइट रिएक्शंस टू शो द बफर एक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो पहला काम तो हमारे लिए ये है कि हमें इसकी एक रिवर्सिबल आयनाइजेशन इक्वेशन लिखनी चाहिए. और वो कुछ यूँ है कि अगर इफ़ यू हैव H2PO4 -1 reversibly forms hydrogen ions plus HPO4 -2 और इसके दरमियान में रिवर्सिबल एरो जो है वो आ जाते हैं. अब अगर आप इसके अंदर भी लेट्स से अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन डालोगे, OH नेगेटिव एल्कली डालोगे, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और H2PO4 -1 will react with hydroxide ions to form water plus HPO4. बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा. इन दोनों के रिएक्शन से वैसे बनेगा क्या? इन दोनों के रिएक्शन से आपको मिलेगा वाटर. यू विल गेट H2O एंड रिमेनिंग HPO4 -2 विल रिमेन. अगर आप इस मिक्सचर में हाइड्रोजन आयंस डालोगे, इफ यू विल ऐड हाइड्रोजन आयंस, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा. ठीक है जी. और H प्लस आयंस रिएक्ट विद HPO4 -2 आयंस टू फॉर्म H2PO4 -1 आयंस. तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एथेनोइक एसिड के साथ था, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है. बस सिर्फ एग्जांपल में एथेनोइक एसिड और एथेनोएट आयन की जगह डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस जो है वो लिख लिए. ऐसे ही आपके ब्लड बफर जो है ये कैसे काम करता है. लेट्स सी, आपका जो ब्लड है आपने उसका नाम पढ़ा होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद वाटर इन द ब्लड, CO2 प्लस H2O करें तो कौन सा एसिड बनता है? CO2 प्लस H2O फॉर्म्स H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाता है. अब कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन दे एक्ट एज अ बफर. कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1 स्लैश कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ बफर. तो अब आप इसका रिएक्शन कैसे होगा, हाउ दिस विल एक्ट एज अ बफर. तो अगर मैं कार्बोनिक एसिड वाली इक्वेशन लिखूं, या ये इक्वेशन भी ऐसे भी लिखी जा सकती है, CO2 प्लस H2O
CO2 plus H2O to form कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर आप मिक्स करें तो इससे क्या बनता है, हाइड्रोजन आयन बनते हैं प्लस HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनते हैं, HCO3 - 1 बनता है जो कि मिलकर H2CO3 ही बनता है। तो अगर आप इस मिक्सचर में जो कि आपकी ब्लड में ये बना हुआ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस इनकी। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन आयन आपकी बॉडी में बनना शुरू होते हैं किसी भी वजह से, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं और वो आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस यानी एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड चला जाएगा। H+ आयंस विल रिएक्ट विद HCO3 नेगेटिव आयंस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरह आपके ब्लड की जो पीएच रिड्यूस डाउन होनी थी वो डिक्रीज नहीं होगी और आपकी ब्लड बफर जो है वो आपकी पीएच को मेंटेन रखेगा टू कीप योर प्रोटीन्स इंटैक्ट। इसके अगेंस्ट अगर हाइड्रोजन आयंस कम होना शुरू हो जाएं या एल्कलाइन मीडियम आना शुरू हो जाए तो फिर आपका ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के मिलने से कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड जो है उसमें से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर बनाएंगे वाटर, दे विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर, ये मिलकर बना देंगे H2O और बाकी क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो इस तरह से इफ एल्कलीन मीडियम इज क्रिएटेड और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल रिएक्ट टू फॉर्म water again and hydrogen carbonates, whereas if hydrogen ion concentration increases due to bacterial activity, so these hydrogen ions will react with hydrogen carbonate ions to form carbon dioxide and water. Remember, pH is not affected when hydrogen ions do not concentration do not change. तो अगर आपके बॉडी में आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया या फंगस या वायरस से चेंज होने की कोशिश कर रही थी, तो आपके बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म, दैट कार्बोनिक एसिड टेंड्स टू मेंटेन द pH of your blood, so it maintains the pH of the blood. Any questions up till now? Okay, these are the examples of acidic buffer. Let's take an example of an alkaline buffer. So if you have no question, please, you need to remember the reactions when acid is added or when an alkali is increased. So how buffer can maintain its pH, you need to write the reactions. You need to write the reactions. You need to shift the equilibrium on one side. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन किसी एक साइड पर जाएगा और वो आपकी पीएच को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यू नीड टू राइट दैट रिएक्शन which is the one reaction when an acid is added and the other reaction when an alkali is added. You need to write two separate reactions and you will get 2 marks for writing those two reactions. तो मैंने आपके सामने ब्लड बफर की एग्जांपल भी रखी, एक हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट मिक्सचर की एग्जांपल भी रखी, एक एथेनोइक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की एग्जांपल भी रखी। In all these cases, you have a weak acid and a conjugate base of that weak acid, and that mixture is acting as a buffer. We call these buffers as acidic buffers. Now let's move on to an example of an alkaline buffer. And alkaline buffer की एग्जांपल में अब हम क्या करेंगे, हम एक weak alkali लेंगे. We will take a weak alkali and its conjugate acid, weak base and its conjugate acid. So if you see ammonia and ammonium ions, so ammonia we know is that it's a weak base. Ammonia is a weak base, weak alkali. Whereas ammonium ion is the conjugate acid of
conjugate acid of ammonia of the base. हमने एक वीक बेस ली है और उसका कॉन्जुगेट एसिड ले लिया है. सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड बेसिक बफर. अब ये रिएक्शन होता है अगर आप वीक बेस को पानी में डिजोल्व करें, यू गेट अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस. ठीक है जी. तो अगर आप इसमें इफ यू ऐड हाइड्रोजन आयंस, if you add hydrogen ions, H plus ions, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और अमोनिया और वाटर मिलके अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड मिलेंगे. और आपको पता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा बनेंगे वो